Welcome to the third lecture in the subject Material Testing and Evaluation. So, in the previous class we were talking about chemical composition of raw material of cement. Okay. What were the raw material? Basically they were argillaceous and calcareous compound. Okay. In which we studied about lime, silica, alumina, calcium sulfate, which is also called as gypsum, iron oxide, magnesia, sulfur and alkali. So let's move ahead and let's see when you have these raw material, how you manufacture them. What you do? You basically heat this raw material in a kiln, okay, and when you heat them, these materials start fusing, okay, the raw material. So raw material starts fusing, and on fusing it forms clinker. Okay, so let's write this. So the next topic is clinker. What is clinker? When raw materials are kept together and heated, they gets fused and clinker is formed. Clinker is formed. So this is basically called clinker. Raw material is fused and this fused substance is called clinker. So the clinker is also referred as Bogue compound. Okay. So which is also referred as Bogue compound. Okay, so you have raw material, you heated it, material got fused and clinker is formed. This clinker is also referred as Bogue compound. So what is basically Bogue compound? Okay, now this becomes okay. So what is Bogue compound? This becomes a little important. Okay, so see here. Let me change the color. Okay, so what do you mean by Bogue compound? So the first Bogue compound is tricalcium silicate. Chemical formula is
tricalcium silicate. We use this symbol C3S, and common name for this one is halite. Then second book compound is dicalcium silicate. Chemical formula is this one, and symbol we give is C2S, and common name is halite. Third book compound is tricalcium aluminate. And chemical formula is N2O3. This is given symbol C3A, and common name is silite. Then the fourth book compound tetracalcium aluminoferrite, and chemical formula is Fe2O3, and symbol is C4 AF. Common name is phthalate. So these are four both compounds that are formed while heating the raw material of cement. These chemical compounds are formed. Now, are these compounds important for us while we are reading this? So yes, they are very important for us. Why? Because if you want to control certain properties of cement, you should control formation of these particular compounds. Now we must understand that what role does these compounds play in altering the properties of a cement. Okay, so we will see these compounds one by one. Okay, so so the first compound is C3S, which is tricalcium silicate. So what does C3S do inside the cement? Okay, so basically it hydrates rapidly and gives
increasing strength. ओके, काफी जल्दी हाइड्रेट होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस काफी फास्ट होता है. व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज जब आप सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो हार्ड होना स्टार्ट होता है. ओके, सो वाटर के प्रेजेंस में जो वो हार्ड होता है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम हाइड्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इट हाइड्रेट्स रैपिडली, काफी फास्ट हाइड्रेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, जिस वजह से अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन? C3S. Raising C3S increases heat of hydration. तो अगर आप C3S की क्वांटिटी या परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज करने लगेंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रेशन प्रोसेस की जो हीट है वो भी क्या होगी? बढ़ने लगेगी. बिकॉज सीमेंट जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है वो क्या है? बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से कुछ हीट उसमें से इवॉल्व होती है. और अगर आप C3S का परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे तो ये हीट भी क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस against freezing and thawing. Okay. तो अगर आपके सीमेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ C3S फॉर्म हुआ है तो वो क्या होगा? आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट में, है ना. वाटर फ्रीज कर जाए सडनली एंड देन मेल्ट करे, फ्रीज करे, मेल्ट करे, तो ये क्या करता है? सीमेंट को इस पे हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है. तो इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस, इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस सीमेंट के पास होना चाहिए अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वो आप डेवलप करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ C3S. ओके, नाउ ये पॉइंट को जस्टिफाई कैसे करेंगे? सो इट हैज हीट ऑफ हाइड्रेशन इक्वल टू 500 जूल पर ग्राम. अगर 1 ग्राम ऑफ C3S है तो इट विल प्रोड्यूस 500 जूल ऑफ एनर्जी. तो इतनी सारी एनर्जी अगर आप इवॉल्व करेंगे क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट क्या होगा? रेजिस्टेंस डेवलप होगा. ओके, फोर्थ पॉइंट जस्टिफाइज द थर्ड पॉइंट. All the other points are clear. Okay. So if you see C3S, it provides higher value of heat of hydration. Now this is very important. Okay. So let's move ahead. Let's talk about C2S. talk about C2S, which is
डाई कैल्शियम सिलिकेट। You remember the chemical formula? We have already written it in the table. So जैसा कि C3S को हमने देखा था, वो क्या होता, जल्दी हाइड्रेट होता था और जल्दी स्ट्रेंथ देता था। जल्दी हाइड्रेट होगा तो जल्दी स्ट्रेंथ भी होगा देगा, ठीक है। C2S उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये क्या होगा, स्लोली हाइड्रेट होगा और आपको लेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इट हाइड्रेट्स slowly and provides late strength। कुछ वक्त बाद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा C2S का क्वांटिटी। ओके, कुछ ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि फाइनल एंड में जो स्ट्रेंथ आएगी वो इसी की वजह से आएगी। आखिरी तक स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, C2S प्रोवाइड करेगा। सो वी कैन ऑल्सो से दैट it contributes in ultimate strength। बाद की स्ट्रेंथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि स्ट्रेंथ हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, स्लो है, बाद में स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इफ यू सी हियर, if I give you comparison from C2S and C3S, so you can write here C3S gives strength within a month, roughly around 28 days। 28 दिन तक कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C3S प्रोवाइड करता है, बट C2S provides strength after 1 month, but same as C3S। ठीक है, ये 1 महीने तक स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, C3S। C2S क्या कर रहा है, 1 महीने के बाद प्रोवाइड कर रहा है। कब तक प्रोवाइड कर रहा है सर, अराउंड 1 ईयर, लगभग 1 साल तक आपको C2S की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और जितनी स्ट्रेंथ C3S प्रोवाइड करेगा, लगभग उतनी ही स्ट्रेंथ C2S भी प्रोवाइड करेगा। तो दोनों का स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन लगभग एक जैसा ही है, लगभग बराबर ही। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? अगर आप C2S का परसेंटेज बढ़ा दो तो क्या होगा? ये स्लो वाला स्ट्रेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा
स्ट्रेंथ क्या होगा, लेट में ज्यादा आएगा अगर आप C2H का क्वांटिटी बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन स्लो है। और अगर आप इसका क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो C3H का क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका मतलब है अर्ली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर, रेजिंग C2H increases late strength decreases early strength and reduces heat of hydration. ओके, तो अगर आप C2H का क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो तो क्या होगा, लेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जो बाद में स्ट्रेंथ आती है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप C2H की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली C3H कम हो जाएगा, विच मीन्स अर्ली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीजेस अर्ली स्ट्रेंथ, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यू मस्ट नो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है फॉर C2H। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन is 260 joules per gram, है ना। C3H का कितना था, 500 जूल पर ग्राम, इसका कितना है 260। तो अगर आप C2H बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 260 वाला अमाउंट बढ़ेगा, है ना। पर ग्राम के हिसाब से आप ग्राम बढ़ाते जाओगे तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, उसके हिसाब से हीट जनरेट होगा। जबकि C3H से क्या हो रहा है था, 500 एक ग्राम से जनरेट हो रहा था। अल्टीमेटली क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन विल डिक्रीज। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। So what is your sixth point? Sixth point is it imparts resistance against chemical attack। ठीक है, तो जो C2H है वो केमिकल अटैक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है ये हम थोड़ा लेट में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि इट, सो दिस इज ऑल अबाउट C2H। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट third book compound, which is C3A, tricalcium aluminate। सो इसकी क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, reacts with water and provides flash set। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रेशन प्रोसेस होगा,
हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। ओके, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लैश सेट। ठीक है, ये जो सेट है ये हार्डनेस नहीं है। ओके, ये हार्डनेस नहीं है। सेट का मतलब क्या होता है कि एक शेप आप उसको दे सकते हैं, बट वो उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। C3A क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सेट शेप को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि C3A क्या होता है, इसको हार्ड नहीं बनाता है, हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता है, उसको सेट प्रोवाइड करता है। ठीक, सो इट इज responsible for one initial set high heat of hydration, और तीसरा सल्फेट अटैक। ठीक है, C3A 3 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेट के लिए, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए और सल्फेट अटैक। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कितनी है, अराउंड 865 जूल्स पर ग्राम है, तो it is quite high. Okay, so this is all about so it is all about C3A. So let's move ahead. Fourth वो compound is C4AF, tetracalcium alumino ferrite. Okay, so what is its property? First one, it also provides flash set. Second point is heat of hydration is low. How much? 420 joules per gram. It has low cementing property. ओके, सो पहली बात क्या है कि फ्लैश सेट प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता है, फ्लैश सेट प्रोवाइड करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन लो है, 420 जूल्स पर 1 ग्राम। ठीक है,
सीमेंटिंग प्रॉपर्टी काफी कम है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल यही वाला है कि हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सेट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बोक कंपाउंड्स। ओके, सो तो कुछ अगर आप कुछ आप चीजें नोट डाउन करना चाहें अगर आप देखना चाहें ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, okay, so highest heat of hydration is provided by C3A, 865 joule per gram. Okay, then C3S, 500 joule per gram. Then C4AF, 420 joules per gram. Then C2S, 260 joules per gram. ये जो भी हीट आ रहा है ये कहां से डेवलप हो रहा है? वाटर और सीमेंट के रिएक्शन से, जो कि क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सो दैट इज व्हाई सम हीट इज इवॉल्व्ड। ओके, okay, and what can be other point? Other note can be C3A and C4AF have little contribution in strength, है ना? C3A और C4AF का स्ट्रेंथ में ज्यादा रोल नहीं है। ओके, इनका रोल किसमें है? मेनली सेट में, शेप रिटेन करते हैं ये दोनों कंपाउंड्स। ओके, C3S and C2S have major contribution in strength. तो सीमेंट की स्ट्रेंथ मेनली C3S और C2S की वजह से है। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ की बात। ओके, थोड़ा एक ग्राफ पे देखेंगे। यहां पे आप देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहां देखेंगे आप टाइम। सो 0, 28 days, then 90 days, 180, then this is 3. Okay. तो अगर आप ऐसा प्लॉट करना चाहें कि कितने टाइम बीतने पे सीमेंट की स्ट्रेंथ किस तरीके से, कौन सा क्वांटिटी या कौन सा कंपाउंड
टाइम के साथ कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, सो C3S का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है. शुरुआत में काफी स्ट्रेंथ गेन करता है. ओके, 28 डेज में ही अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेता है. फिर लगभग वही स्ट्रेंथ 1 साल तक रहती है. लगभग वही स्ट्रेंथ, थोड़ा सा इंक्रीज होगा. ओके, देन अगर आप C2S को देखेंगे तो C2S कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. तो लगभग 28 दिन के बाद, ओके, लगभग नॉट एग्जैक्ट 28 दिन के बाद क्या होगा, स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करेगा और 1 साल के अंदर लगभग दोनों की C3S के बराबर ही स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, या उतनी ही स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करेगा, लगभग, नॉट एग्जैक्ट. ओके, जो C3A है ये काफी कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. सिमिलरली C4AF है ना. तो ये बेसिकली ये क्या है, स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. मेजर जो स्ट्रेंथ है वो C3S और C2S के वजह से. ओके, सो दिस इज हाउ सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ. ओके, 4 कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेंथ के लिए. कौन कौन से? C3S, C2S और फॉर्मेलिटी जिसमें, ओके, 4 कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल हैं C3S, C2S. जो माइनर रोल है वो है C3A और C4AF. So a student must understand that formation of these compound is very important. Okay, and if you want to alter the property of cement, you should alter these compounds, their quantity in a cement. Okay, एक सीमेंट के अंदर, अगर आप एक सीमेंट के अंदर इन 4 क्वांटिटीज का परसेंटेज चेंज करेंगे, उसी हिसाब से सीमेंट की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी. ओके, so this is all for today's lecture. We'll meet in the next segment. Thank you very much.